چاہتی ہوں کہ آپ خود اس کے لیے مجھے آمادہ کریں، ذہن میں دیکھیے تیار ہو جائے امام کی ظہور کے لیے، نیت کر کے سوئے کہ امام جب آپ کی آواز آئے، جب آپ ظہور کریں تو ہم آپ کے پیچھے. اور بے شک دیکھیے جب امام آئیں گے، اگر امام آئیں گے، امام سے ملاقات کریں گے تو امام پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا میرے انتظار میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ ذاکرہ نے معرفت کا عنوان تھا، ہم اس عنوان میں کہیں گے آپ کی معرفت کو حاصل کیا. یعنی کہ ہم سب یہاں جو جمع ہوئے، پھر سے بتا دیجیے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم امام کے سامنے ایک دوسرے کے گواہ بنیں گے. کوئی آئے نہ آئے، ہم ایک دوسرے کے گواہ بنیں گے. کہیں گے کہ امام ذاکرہ نے عنوان رکھا، ہم اس میں شامل ہیں. اور میں کہوں گی کہ مولا میں تھوڑی سی خدمت کی تھی آپ کی عنوان کی، آپ کی معرفت کو پہنچانے کی، اور یہ سارے غریزان زہرا آپ کی محبت میں آپ کے منتظر بن کر آ گئے. یعنی کہ جب امام آئیں گے تو ہم روبرو امام سے بیعت کریں گے. اور جب بیعت ہو جائے گی، تھوڑا سا اس منظر پر چلیں گے، جب بیعت ہو جائے گی تو کیا ہوتا ہے؟ امام سے بیعت ہو جائے تو ہم امام کے پیچھے نماز ادا کریں. ہم امام کے پیچھے، دیکھیے ہمارا شرط، ہمارا مقام کیا ہے؟ اس امام کے پیچھے ہم نماز ادا کریں گے جس کے پیچھے عیسیٰ جیسا نبی نماز ادا کر رہا ہے. ہمارے مقام کو سمجھے، اپنے مقام کو جانے، اپنے شرط کو سمجھے کہ جس امام کے پیچھے نبی، امام کہیں گے کہ عیسیٰ نبی آپ نماز پڑھائے تو نبی عیسیٰ کیا کہیں گے کہ اے وارث رسول آپ اپنی حجت کو تمام کریں، آپ نماز پڑھائے آپ امام. اور عیسیٰ اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور اسی امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب ہم امام سے بیعت کریں گے تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم امام سے اپنی حاجتوں کو کہیں گے کہ ظاہر دنیا کی بات کر رہے ہو، وہ نہیں کہ ہم مرنے کے بعد. دیکھیے اگر نیت ہوگی، امام کا ظہور ہوگا، تب کی منزلیں بتا رہے ہیں. زندگی میں ملاقات امام بتا کے رہے، زندگی میں باحیات ابھی بھی میں نے کہا نا امام زمانہ ملاقات با امام زمانہ. اگر ہم باحیات ہوں گے، نیت کر کے سوئیں گے، شب جمعہ آ رہی ہو، اگر ظہور ہو جائے گا امام سے بیعت کریں گے اور امام سے حاجات رکھیں گے. کون سی حاجات؟ یہ حاجات نہیں جو دنیا ہی دے کے مجھے گھر دے دے، میری بیماری کو دور کر دے، مولا یہ پریشانی. دیکھیے بڑا امام سے ملاقات کرنے کے بعد ہماری حاجات بھی تبدیل ہو جاتی، آرزویں بھی تبدیل ہو جاتی. کون سی دعا کرنے لگے کہ امام میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مولا علی کا دیدار کروں، ماں میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے مولا حسین سے ملاقات کروں. تو اب امام کیا کریں؟ امام اپنے ساتھ کیونکہ ہم نے زندگی میں دنیا میں ان کے لیے برشزا کا اہتمام کیا، ان کی معرفت کے لیے وقت کو نکالا. آپ آنے کا فائدہ بتا رہے ہیں، کیا ہمیں اطلاع حاصل ہو رہا. امام کہیں گے چلو آج تمہیں علی سے ملا. اب مولا علی سے کہیں گے دیکھیے میری چاہنے والے. دیکھیے دنیا کی جو حاجات ہیں امام سے ملنے کے بعد تبدیل ہو جائے. یہ امام سے معرفت کا جائے، یہ معرفت کا جو ہمیں کیا مل رہا ہے، کیا سبق مل رہا ہے، یہاں پر آنے سے ہمیں کیا مل رہا ہے. جو 1 گھنٹہ رہے نا، آپ اب نہیں اس کا پتا چلے گا. جب اس مقام پر جائیں گے آپ یہی ممبر سے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم ممبر سے کہنے لگی ہوں گا. جب امام کی طرف آپ آئیں گے، امام سے ملاقات کریں گے، امام کے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ کاش کہ میں اس دنیا میں ساری دنیا کی مصروفیات کو چھوڑتا اور امام کی معرفت میں لگا رہتا. ایسا وہ منظر. اسی لیے بار کہتے ہیں کہ آئے عنوان میں آئے. اسی لیے کہہ رہی ہوں. اب یہاں پر میں آپ کو جیسا کہ حکومت طور پر میں واقع ملاقات امام، دیکھیے امام ملاقات بھی کرتے ہیں اور ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں اور ہمیں اس طرح سے ہمارے حالات میں تبدیلی بھی لاتے ہیں. 4 دوست تھے، بس کچھ لمحات سے 2 سے 5 منٹ لوں گی اور انشاءاللہ آپ سے 4 دوست تھے. ایک محلہ تھا، بڑے شرارتی شخص تھے وہ چاروں، جو ہے کہ جیسے چوراہا پر بیٹھا کرتے ہیں نا، ہوتا ہے نا اسٹریٹس پر بیٹھا کرتے، وہ بھی اسی طرح سے بیٹھا کرتے تھے، آنے جانے والوں کو چھیڑا کرتے تھے. اب اس نے کیا کیا، اس میں سے ایک جو شخص تھا وہ زیادہ ہی یعنی کہ
बद अखलाक था। अब उसने क्या किया, वो बैठा हुआ था कि देखा कि मुअज्जिन गुजर रहे, मुअज्जिन सामने से गुजर रहे। अब उसने क्या किया, उसने ऐसे कुछ पत्थर फेंककर उस मुअज्जिन को छेड़ा। और मुअज्जिन कह रही कि भाई तू कितना बद अखलाक है, तेरा वालिद तो इतना शरीफ है, तू बद अखलाक कैसे निकल गया, तुझे नहीं मालूम रसूल की किस तरह से एहतराम करना। अब वो कहता है मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं शरारत करूं, मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी को इज़ा दूं। अब क्या हुआ, आने जाने वाले को ऐसे ही वो सताने लगा। अब उसी मोहल्ले में और 2 से 3 शख्स रहा करते थे जो इमाम से मारिफत रखते थे, तालिबे इल्म थे, बड़े ही संजीदगी से रहते थे, संजीदा लड़के थे, संजीदा शख्स थे। अब उन्होंने देखा, करीब ने कहा कि देखो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ें बदअखलाकी अच्छी नहीं है। अब उनमें बातचीत हुई, उसके बाद अब मौसम उस शख्स के जिसने उसे छेड़ा था उस शख्स के घर गए, कहने लगे कि भाई आप तो अच्छे मुझे मालूम लगते हो, लेकिन आपके फर्जंद इस तरह से बदअखलाकी करता है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं बच्चे की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप उसे माफ़ कर दें। अब ये हो चुका, अब रात गुजरी, अब लड़का सो रहा था, अब उसके वालिद फजर का वक्त था, नमाज पढ़कर गिरयाद कर रहा था, कह रहा था कि मौला मेरे वक्त के इमाम मेरे बच्चे को थोड़ा सा अखलाक, उसके दिल में मारिफत खुदा, कुछ भी कर मेरे इमाम मेरे बच्चे को सुधार, उसकी सारी बदअखलाकी को दूर कर दे, उसके दिल में आपकी मारिफत को उजागर कर दे। अब ये कहकर रो कर गिरा कर दुआ कर रहा था अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए। उतने में जैसे ही कुछ देर गुजरी कि वो उसने महसूस किया कि उसका लड़का बिस्तर पर तड़प रहा है, मछली की तरह, बिना पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। अब जैसे तैसे अब वालिद ने क्या किया, नमाज को अदा किया, बच्चे के करीब गए, बड़ा पेट को पकड़े रो रहा था। अब उसने आवाज़ जब उन्होंने चाहा कि कोई मदद को आ जाए, तो उन्होंने अपने पड़ोस से आवाज़ सुनी, उसी घर से जहाँ पर वो अच्छे भले लोग रहा करते थे। फजर का वक्त था, वह एक तबस्सुम की तिलावत कर रहे थे वो लोग और इमाम की मारिफत का जिक्र कर रहे थे। अब वो घर पर गए, अब उन्होंने उन्हें बुलाया। अब वो लड़कों ने क्या किया, उस शख्स को, उस बदअखलाक लड़के को लेकर अस्पताल गए, हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाना था, अब आकर डॉक्टर कहता है कि बड़ी सीरियस कंडीशन इस लड़के की, अब बड़ी सीरियस कंडीशन है, इसका ऑपरेशन जरूरी, क्योंकि अपेंडिक्स फट चुका है, फैल चुका है। अगर ऐसा ना हो कि अगर आपने बोला है कि तो शायद इसकी जान चली जाए। अब वो वालिद बड़ा परेशान था, वो कहने लगा कि चलो इलाज शुरू किया जाए, ऑपरेशन शुरू किया जाए। वो कहता है कि देखो ये जो ऑपरेशन करने वाला सर्जन है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो मानेगा नहीं जब तक कि उसकी फीस पूरी की पूरी मुकम्मल वहाँ पर डिपॉजिट ना हो जाए। अब वो वालिद कहता है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, यानी कि वो बहुत बड़ी रकम मांग रहे थे, बड़ी रकम मांग रहे थे फीस के तौर पर। अब वालिद कहता है कि मेरे पास उतनी कोई जमा पूंजी नहीं है कि मैं दे सकूँ। और कहता है कि मुझे नहीं मालूम, आप या तो रकम अदा करें या फिर बच्चे को नहीं मालूम, उसकी जान का नुकसान, मतलब जान शायद जा सकती है। अब वो जो लड़के उसके साथ है ना, जो बड़े नेक सुलूक, उसने सुलूक रखने वाले, इमाम की मारिफत रखने वाले, अब वो क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा अब उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ पैसे हैं जो हमने चंदा देकर इकट्ठा किया अपने मोहल्ले की, यानी कि जो गरीब है, वेलफेयर सोसाइटी के तौर पर हमने उनके लिए जमा किया है, किसी के काम आ जाए। और हमने कुछ पैसे जमा किए कि हम हर साल उन पैसों को जमा करके 15 शाबान को आमद इमाम ज़माना का हम जश्न, हम उस पैसों से आमद ज़हूर इमाम ज़माना का जश्न मुनक्किद करते हैं, यानी कि उसकी सजावट तैयारी करते हैं। तो वो शख्स कहने लगा जो बड़ा ही नेक सुलूक था, उसने कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी करें। वो गए घर से उस पैसों को लाया, चंदे को, डब्बे को लाया, डॉक्टर के हवाले किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कामयाब हुए। कुछ वक्त गुजरा कि अब वो वालिद बेटे से मिलने गया। बेटा कहता है कि बाबा मुझे क्या हुआ था बाबा। अब उसका वालिद कहता है कि बेटा तुम बहुत यानी कि बीमारी में मुब्तला हो गए थे, ऐसी रकम थी जो मुझे बोलकर हमने तुम्हारा ऑपरेशन करवाया। और बेटा कहता है बाबा हमारी तो इतनी इस्तेदाद नहीं थी, आपने किस तरह से आपने पैसों की हिफाजत की। अब ये जब बात चल रही थी ना, उतनी देर में वो जो सर्जन था वो भी अंदर वार्ड में आया। अब वो सारी गुफ्तगू बेटे और यानी कि वालिद की दरमियान की गुफ्तगू को सुन रहा था। वालिद ने कहा कि मेरा देखो वो जो भाई थे ना, जो नेक उसने सुलूक करते थे, उन्होंने तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे दिए, जिसने तुम्हारे इमाम की यानी कि आमद के लिए जो पैसे बचा कर रखे थे, उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे दिए। अब देखिए कैसे तब्दीली
में हो जाते हैं। अब वो कहता है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अब वो डॉक्टर परेशान हुआ, उस वाले से पूछा कि तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया? उसने कहा कि नहीं हमारे यहाँ पैसा नहीं था, वो बड़े बच्चे थे, इसलिए इमाम की राह में पैसे जमा किए थे और उसने सूट के लिए, वेलफेयर के लिए, किसी के गरीब मोहताज की मदद के लिए पैसे रखे थे, उन्होंने इसके लिए दे दिए। अब यार वक्त गुजरा, अब वो जो लड़का था वो ठीक हुआ, उस दोस्तों के पास आया। अब वो दोस्त बड़े परेशान थे, इसके 15 शाबान की आमद के दिन नजदीक आ रहे थे। अब वो कहने लगे कि भाई दिन नजदीक है, हम किस तरह से एहतमाम करें इमाम की ज़रूरत का। हम उनसे सवाल करेंगे कि भाई पैसा तो दे दिया लेकिन कोई एहतमाम नजर नहीं आ रहा। अब परेशान थे। अब जो शख्स बिगड़ा हुआ था, जो सुधर गया, वो अपने दोस्तों के साथ अपने महल्ले में गया, वापिस आया, कहा कि भाई हमने महल्ले में पूछा लेकिन बड़े लोग हैं, मेरे हमसे तो कुछ बंद नहीं पड़ा। अब उसमें से एक शख्स ने कहा कि देखो मेरी माँ ने जब सुना ना कि इमाम के ज़हूर का एहतमाम करना है, जश्न मुबारक का एहतमाम करना है, तो मेरी माँ ने कहा कि मैंने सारी उम्र सिलवाई की और सिलवाई करके जो जमा पूंजी की उससे मैंने सोने की कंगन खरीदी थी। अब वो शख्स ने क्या किया, अपने जेब से उस कंगन को निकाला और कहता है कि मेरी माँ ने जैसे ही सुना कि इमाम के ज़हूर की खुशी की एहतमाम में कमी आ रही है, तो कहता है कि मेरी माँ ने कहा कि ये कंगन ले जाओ इमाम की। अब दूसरा शख्स क्या किया, दूसरे शख्स ने कहा कि भाई ये कुछ जमा पूंजी मेरे वालिद ने की, क्योंकि वो पैरों से माजूम था, वो चाहते थे कि अपने लिए एक व्हील चेयर का बंदोबस्त करें। उन्होंने ये सारी जमा पूंजी की थी कि व्हील चेयर का बंदोबस्त करें। अब उन्होंने कहा कि जब इमाम के लिए पैसा काम ना आए तो क्या फायदा, अब उन्होंने उसे दे दिया। अब उन लोगों ने कहा कि देखो इमाम ने खुद अपनी जिम्मेदारी। अब उन्होंने शुक्र अदा किया, दोबारा से दुआएं तवस्सुल पढ़ने लगे, दुआएं अहद, दुआएं फर्ज, ईमान की दुआएं पढ़ने लगे। कुछ ज़माना गुजरा कि डॉक्टर सर्जन उनके घर तशरीफ आए और डॉक्टर कहता है, जैसे उन लोगों ने देखा और पूछा कि डॉक्टर साहब हम खुद आ जाते, ऐसी क्या बात है? अब डॉक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर की हैसियत से नहीं आया। देखिए जब ये दुआएं तवस्सुल पढ़ रहे थे, इमाम का शुक्रिया अदा कर रहे थे, इमाम के लिए दुआ कर रहे थे ना, उतने में वहां पर क्या हुआ, अब वो डॉक्टर को ज़मीर जागने लगा। ज़मीर जागकर ज़मीर ने उससे सवाल किया, पूछा कि तुम डॉक्टर क्यों बने? अब उसने कहा कि मैं बड़ों की जान बचाने के लिए मैंने इसे डिग्री को हासिल किया, मैंने ये पोस्ट लिया। तो ज़मीर ने कहा कि तुम बड़ों की जान बचाने के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने अपने प्राइस को अदा किया, तुमने पैसा दिया, लेकिन वो जो लड़का था उसने क्या किया, उसने इमाम के राह में पैसा जमा किया, उसने जान बचाने के लिए पैसा दे दिया। अब जैसे ही उस डॉक्टर के खत में इमाम की मारिफत उजागर हुई थी, वो फौरन नीचे घर आया, क्या देखता है कि चारों लोग लगता है इमाम से तवस्सुल कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इमाम आपने अपना यानी जो आपके परेशान होते अपना एहतमाम किया, आपका बंदोबस्त कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं अपनी हैसियत से नहीं आया हूँ, मैं आज अपने शिया होने का जो मेरे अंदर, मैं भी शिया था लेकिन मैंने दुनियाई मसरूफियात, दुनियाई ऐशो इश्रत को भूल गया था, मैंने पैसे की खातिर अपने ज़मीन को बेच दिया था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इमाम के पैसे एक जान बचाने वाले के लिए लगा दिए। देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ आने में ताउन करें। इमाम देख रहे कि कौन इमाम की राह में किस तरह से ताउन कर रहा है। मुझे नहीं मालूम, मैंने पढ़कर ताउन किया, आपने आने में ताउन किया, नहीं मालूम, जहाँ कहीं भी इमाम की इबादत का जिक्र जरूर चल जाए, जितना अगर अपनी हैसियत से कुछ बनता हो तो ताउन कर दे। देखिए इमाम वो है। अब क्या हुआ, अगली मंजिल बताने लगी, उन्होंने ताउन किया था वो भाइयों ने, और वो डॉक्टर कहता है कि देखो मेरे ज़मीर को मारिफत आई और वह ज़मीर में मारिफत उजागर हो। अब उसने कहा इतनी बड़ी रकम लेकर आकर कहता है कि देखो ये कुछ रकम है, इसमें से तुम कुछ रकम इमाम के जश्न के लिए लगा, कुछ रकम इमाम के जश्न के लिए लगा लो और कुछ रकम अपने गरीब भाइयों को जिस तरह से तुमने मदद की ना उस जैसे ही सुनना था। अब सारे दोस्त थे परेशान हो गए, अब कहने लगे कि देखो तुमने जरूर से दे दिए, तुम्हारी माँ ने कंगन दिए, तुम्हारे बाप ने व्हील चेयर की कमाई दी, अभी तुमने दिए भी ना थे, इमाम ने नियत का कबूल किया और वापस। अब वो कहता है कि ले जाओ
जाए पैसे, जाओ मेरी तरफ से ईमान का हदिया समझो। ईमान ने तुम्हारी माँ के हदिये को कबूल किया और तुम्हें तोहफे में तुम्हारी माँ के कंधे वापस किया। अज़र मोहतरम, जैसे तेरे जितना अपनी हैसियत से बने ना, जरूर किसी भी तरह से ताउन करे, जहाँ भी ईमान के लिए जैसा अपने से बने ना ताउन करे। मैं इसीलिए कहती हूँ आने में ताउन करे। मेरे लिए बस यही काफी है कि आप आ जाए, अब वो ईमान जिससे जैसे खिदमत लेना चाहे वो ले लें। अगर आपकी नियत, अगर आपके दिल पे मारिफत हो जाता हो, भले ही 1 रुपया से इमाम के, भले ही जितना आपकी हैसियत से हो, जरूर ताउन करें। नहीं मालूम कि इमाम कौन से ग्रह से तुम्हें, देखिए जितना दोगे उतना तो इमाम नहीं देंगे, अभी मैंने बताया। इसीलिए कहती हूँ मारिफत में आए, इसीलिए कहती हूँ मारिफत में आए और दुआ को मौला हमारे इस आने को कबूल फरमाए। इमाम ज़माना जो जहरा मौजूद है, वक्त निकाल कर आ रही है,